Hello student, welcome to Internet Program Tutorial Series, and also we called as a full stack development series. Today you are the third lecture, and that the third lecture we are covered right now of the functions. Okay, so before that the two topics are there, conditions and loops. Okay, so that condition and loop, okay, we go to the presentation first and then we find out that is what they are. Okay, condition and loop that we covered into lecture number 8, 9 and 10. Okay, as well as we covered in the events in lecture number 10. Okay, once you go to the my channel, here the my channel, and that is a chapter number 3 and the lecture number 10, we cover the events also on there. Okay, so what are we cover on there? The condition and loop, but that the previous one, whatever the lectures are there, okay, lecture number 8, 9, 10 on the first series, internet programming tutorial series, there we can use the variable only the where. Okay, so sorry, not variable, data type is what? Where, var. Okay, but the previous one lecture, that the full stack development series, the previous one lecture we find already that what the let and the const variable. Using that you can use the condition and loop on there. So what are the conditions? Okay, what we covered on there, the conditions and loops on there. Overlook, we have to make some overlook on there. First, what? If else, else if, these are what the conditions. While, do while. Okay, for loop, that is what loops are there. And what are the new one are there? The for each, then for in, for of. These are the three new loops are there. What are there? We discuss one by one and practically also. Okay, but today we discuss only about that the functions, only what are functions. Okay, and that arrow functions, what are the functions and what are the arrow functions. What are the condition and loop and events already we covered in that the first series, internet programming tutorial series, lecture number 8, 9 and 10. Okay, that the some part is remaining, only the loops. What are the loops? They practically we discuss later, but the today only what we discuss a function only. Okay, here. So let us start with the function. So we go to the presentation first here, and we find out here that is the function. So already the last lecture, the last video lecture, we find out about the your functions, how we create the function. Okay, what is the parameters functions, we discussed already. So okay, so what we do, we again do those practice. Okay, what the normal function. Okay, then what is the parameters functions in JavaScript, then what is the anonymous function, what is the arrow function, what is what are the features they are in ES5 in that function. We discuss one by one right now. Okay, so that is the new one file we have to take on. That the name, I think we have, whatever you can take the name, I take here f2. Okay, and dot html, that is we have taken, and we take the script tag. Already you know what the script tag. Okay, so यहाँ पे मैं क्या करूँगा अभी कि नॉर्मल फंक्शन लूँगा, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं आप, जैसे कि हमने लास्ट टाइम में लिया था. मैं लेता हूँ यहाँ पे फंक्शन नाम का जो भी कुछ कीवर्ड है, फंक्शन टेस्ट नाम का फंक्शन मैं लेता हूँ फिर से, और मैंने उसको करली ब्रेसेस करके ओपन कर दिया उसका लूप. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, सॉरी डेटा टाइप लेता हूँ मैं यहाँ पे ग्लोबली लेता हूँ लेट. मैंने लास्ट टाइम लिया था वेरिएबल, आप लेट भी ले सकते हैं. ओके, बट जब लेट आप ब्लॉक में लोगे तो ब्लॉक के लिए सीमित रहेगा. ओके, दैट इज द डिफरेंस. बट वेरिएबल अगर ब्लॉक में लेते हैं तो वेरिएबल पूरे फंक्शन के लिए रहता है. दैट इज द डिफरेंस. लास्ट टाइम हमने देखा था वो. लेट मैं लेता हूँ a इक्वल टू सपोज 30. ओके, और मैं यहाँ पे फिर से एक लेता हूँ, एक वेरिएबल लेट b लेता हूँ. यहाँ पे मैं उसका वैल्यू लेता हूँ 40. ओके, एंड आई वांट टू व्हाट द सम रिटर्न ऑन देयर, और आई वांट टू डिस्प्ले ऑन देयर. सो the globally we are declared, so that's why what we can declare here the globally also. Okay, or we can display on the globally also here. So what we do, मैं क्या करूँगा यहाँ पे
कंसोल लूँगा और कंसोल पे बोल दूँगा कंसोल डॉट लॉग कि ए प्लस बी एंड में यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो रहा है. Okay, so what a plus b we can take and we can find out the that answer on there. Okay, so how we answer find out before we call the function. टेस्ट फंक्शन मैंने कॉल कर दिया. अभी कॉल करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आएगा, a प्लस बी का आंसर आएगा, मतलब 30 प्लस 40 70. तो मैं उसको क्या करता हूँ, कॉपी पाथ बोलता हूँ, फिर ब्राउज़र में आता हूँ, नया टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको पेस्ट कर देता हूँ. एंटर किया और मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट बोला, कंसोल पे आया और देखा मैंने मेरा आउटपुट 70 आ गया. ओके, तो ये 70 तो आ गया. अभी मतलब ग्लोबली भी मैं इसको डिक्लेयर कर सकता हूँ. तो अगर मुझे इसको कमेंट देनी थी यहाँ पे, तो मैं क्या करता था, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करता था, एडिशन ऑफ 2 नंबर. ओके, और मैं यहाँ पे प्लस का सिंबल लेके इसको मैं पैरेंथेसिस लगाता था यहाँ पे. ओके, यहाँ पे मैंने उसको पैरेंथेसिस लगाता था. ये मेरा फंक्शन हो गया, नॉर्मल फंक्शन. मैं उसको रिफ्रेश किया और फिर मैंने ब्राउज़र पे आया, उसको रिफ्रेश किया फिर से. तो एडिशन ऑफ 2 नंबर 70. तो ये स्पेस कैसे देना है ये आपको मालूम है. असाइनमेंट ऑपरेटर के बीच में फिर से डबल इंडेड कॉमा फिर प्लस. तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मैं उसको करता था, रिफ्रेश किया, फ्रेश किया, यहाँ पे आया 70 आ गया. ओके, यहाँ पे स्पेस बन गया. तो ये हो गया, ये नॉर्मल फंक्शन हो गया. अगर मैं उसको कमेंट कर दूँ, ओके, और एक टाइप होता है फंक्शन में रिटर्न टाइप. मैंने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न बोल दिया a प्लस बी. ओके, जैसे मैंने रिटर्न बोल दिया इसको a प्लस बी, तो यहाँ पे मुझे रिटर्न हो गया टेस्ट फंक्शन में. तो उसको मुझे कंसोल में दिखाना है. ओके, कंसोल डॉट लॉग. ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और इस कंसोल पे ही टेस्ट को फंक्शन को कॉल कर दूँगा. तो मुझे आउटपुट क्या दिखना चाहिए, अभी 30 प्लस 40 70. चलो मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, ए की वैल्यू मैं 50 रख देता हूँ. तो अभी 90 वैल्यू आनी चाहिए. तो मैं इसको रिफ्रेश सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ. क्या वैल्यू आ गई, 90. बट यहाँ पे कमेंट कुछ आया क्या, नहीं. क्यों, क्योंकि मैंने कंसोल पे कुछ लिखा ही नहीं अभी तक. मैं बोल सकता हूँ एडिशन ऑफ, कुछ भी लिख सकते हैं आप, एडिशन ऑफ 2 नंबर, दैट्स इट. ओके, और मैंने उसको क्लोज कर दिया. यहाँ पे मैं सेव कर दिया, फिर से मैं ब्राउज़र पे आया, उसको रिफ्रेश बोल दिया. ओके, 90 आ गया यहाँ पे. ओके, तो ये मेरा इस तरह से रिटर्न फंक्शन भी मैं कर सकता हूँ. तो हाँ, एक चीज़ यहाँ पे रह गई थी, हमारा बैक टी का मैंने बोला था लास्ट टाइम. उस बैक टी को कैसे यूज़ करते हैं हम लोग. ओके, तो एस्केप के नीचे और डेल्टा हम बोलते हैं, शिफ्ट डेल्टा हम करते हैं यूज़. तो वहीं पे एक सिंबल है. ओके, स्पेनिश आई थिंक सिंबल है वो. ओके, और उसका आस्की कैरेक्टर है 96. ओके, तो वो मुझे यूज़ करना है. तो मैं क्या करता हूँ, उसको बैक टी को यूज़ करता हूँ, एस्केप के एग्जैक्टली नीचे है वो. ओके, मैंने ले लिया सिंबल वो वाला बैक टी का सिंबल, और मैंने बोल दिया एडिशन ऑफ 2 नंबर. ओके, और एडिशन ऑफ 2 नंबर जैसे मैंने ले लिया. ओके, बैक टी को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ. ओके, सॉरी, ये बैक टी सिंबल नहीं, ये वाला बैक टी सिंबल है. और उसके पहले मैं क्या करता हूँ, डॉट लगा देता हूँ. ओके, डॉट के पीछे आपको जो वैल्यू डिस्प्ले करनी है. ओके, मतलब अभी अगर सपोज मुझे ए की वैल्यू डिस्प्ले करनी थी, तो मैं क्या करूँगा, उसके पहले डॉलर लगा लूँगा. ओके, और जो वैल्यू मुझे दिखानी है और जो वेरिएबल मुझे दिखाना है या जो फंक्शन मुझे दिखाना है, उसको मैं क्या करूँगा, करली ब्रेसेस में लिख दूँगा. यहाँ पे इस करली ब्रेसेस में लिख दूँगा और उसको मैंने सेव कर दिया. अगर इसके जगह पे ए रहता तो मैं ए को दिखा सकता था. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टेस्ट फंक्शन को मुझे डिस्प्ले करना था. तो मैंने क्या किया, डॉलर के पहले, सॉरी, डॉलर के बाद मैंने ओपन करली ब्रेसेस, क्लोज करली ब्रेसेस, इस फंक्शन को डिस्प्ले कर दिया. ओके, अगर आप वेरिएबल भी ले सकते हैं. यहाँ पे अगर सपोज मैंने ए ले लिया यहाँ पे. ओके, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, एडिशन ऑफ 2 नंबर में आउटपुट ए 50 आएगा. चलो देखते हैं, इसको मैं
सेव करता हूँ, ओके, और मैं क्या करता हूँ, उसको ब्राउज़र पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओके। तो क्या आ गया, एडिशन ऑफ टू नंबर इज ए व्हाट 50, बट मुझे एडिशन करना था फंक्शन का यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, फिर टेस्ट नाम का जो फंक्शन था उसको ही कॉल कर दिया, ओके। कॉल करने के बाद वो रिटर्न क्या कर रहा है, एडिशन ऑफ टू नंबर जो लेट ए एंड बी है, ओके। तो आउटपुट क्या आएगा, ऑफकोर्स आपका 90। चलो मैं ब्राउज़र पे हो जाता हूँ, टैब पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा क्या है आंसर अभी, एडिशन ऑफ टू नंबर इज 90, ओके। तो इस तरह से बैकटिक का यूज़ कर सकता है हम। तो बैकटिक का यूज़ करने से क्या होगा कि आपके जो असाइनमेंट ऑपरेटर थे, आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर प्लस, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर प्लस, तो ये झंझट यहाँ से मिट गई। तो बैकटी यहाँ पे लिटरल भी बोल सकते हैं हम इसको, लिटरल्स बोलते हैं हम, ओके। तो लिटरल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहला टाइप था आपका नॉर्मल फंक्शन, दूसरा टाइप था रिटर्न फंक्शन, और थर्ड टाइप है आपका यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे थर्ड टाइप की पैरामीट्रिक्स। मैं पैरामीटर पास कर सकता हूँ फंक्शन के बीच में, जैसे नॉर्मल सी प्लस प्लस जावा में होता है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में। जैसे कि मैं यहाँ पे पास कर दूँगा 60 कॉमा सपोज 50, ओके। और यहाँ पे वेरिएबल रह सकते हैं, कुछ भी ले सकता हूँ मैं, सी कॉमा डी यहाँ पे, ओके। तो मैं रिटर्न क्या करूँगा, फिर सी प्लस डी, तो यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया, ओके। तो रिटर्न मैंने जैसे ही कर दिया सी प्लस डी, मतलब क्या हो गया कि 60 और 50 का एडिशन कितना, 110। तो मैं रिफ्रेश कर सॉरी सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ, टैब पे जाता हूँ और उसको रिफ्रेश करता हूँ, ओके। क्या हो गया, एडिशन ऑफ टू नंबर इज़ 110, यहाँ पे उसका आंसर आ गया। तो ये वाला पैरामीट्रिक्स भी हम उसको बोल सकते हैं एज अ फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फंक्शन को, नॉर्मल फंक्शन को रिटर्न किया, पैरामीटर्स किया, तो सेम थिंग हमने क्या किया था यहाँ पे, उसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इसको, ओके। और ES5 में नया फंक्शन आया था, ES5 में एक नया फंक्शन आया, उसको हम बोलेंगे एनोनिमस फंक्शन। हम प्रेजेंटेशन में जाते पहले हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली, ओके। तो वो क्या है कि ES5 फंक्शन दैट आर नॉट बाउंड टू एन आइडेंटिफायर और वी कॉल्ड एज फंक्शन नेम आर कॉल्ड एज एनोनिमस फंक्शन। मतलब कि ये जो फंक्शन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, कीवर्ड जो लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे फंक्शन, ओके, उसके बाद टेस्ट नाम देता था, तो ये उसके साथ बॉन्ड नहीं रहता, मतलब कंबाइन नहीं रहता है, ओके। खाली मैं यहाँ पे फंक्शन का की जो भी पैरेंथेसिस है वो डाल दूंगा, ओके। और उसको मैं सेव कर दूंगा कोई एक वेरिएबल में, सपोज ऐड नाम का वेरिएबल है यहाँ पे। तो इस तरह से मैं डिक्लेयर करूँगा फंक्शन इस ES5 में, ओके। उसके बाद मैं ओपन किया, क्लोज किया फंक्शन को। तो इसमें मैं फिर से कंसोल पे जाके सेम थिंग कर सकता हूँ। नॉर्मल फंक्शन हो गया अभी ये ES5 का लॉग, और मैं बोलूँगा ए प्लस बी, ओके, और एंड में सेमीकोलन। और फिर मैं क्या करूँगा, इसको कैसे कॉल करूँगा, इस ऐड नाम के फंक्शन से मैं उसको कॉल करूँगा। मैंने कॉल कैसे किया फिर देखो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैकटी का यूज़ करूँगा। फिर से मैं बोलूँगा एडिशन ऑफ टू नंबर इन ES5 में, ये आपके समझने के लिए ले रहा हूँ ये, ओके। और मैं क्या करता हूँ, इसको डॉलर मार्क दे देता हूँ क्योंकि मुझे ये वैल्यू डिस्प्ले करनी है। उसके बाद मुझे कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करनी थी वो कर्ली ब्रेसेस में लिखना है, ओके। और फिर डॉट एंड देन बैकटिक ख़त्म यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मैंने उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मुझे क्या करना है, अभी चेक करना है कि वैल्यू इस ES5 में एडिशन ऑफ टू नंबर में कैसे आई, क्या आई, ओके। तो मैंने उसको सेव किया, ब्राउज़र पे आया, टैब पे आया और उसको मैंने रिफ्रेश बोल दिया। तो एडिशन ऑफ टू नंबर इन ES5 इज़ 90, बराबर 90 उसका आंसर आ गया। क्यों आया, ए और बी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, ओके। तो ये नॉर्मल फंक्शन हो गया डिक्लेरेशन। अगर मैं उसको कमेंट कर दूँ यहाँ पे और नीचे आया, मैं नीचे आने के बाद मुझे क्या करना है, उसको रिटर्न करना है। तो रिटर्न मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पर रिटर्न ए प्लस बी। जब मैं रिटर्न करता हूँ उसको, तो मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा।
तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंसोल को लेना पड़ेगा यहाँ पे और मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ कंसोल। ओके, इसके जगह पे क्या रहेगा, सिर्फ खाली टेस्ट मैं कॉल करूँगा यहाँ पे। ओके, और मुझे देखना है आंसर आता है या नहीं आता है। ओके, तो मैं उसको सेव किया और ब्राउज़र पे आया, टैब पे आया, उसको रिफ्रेश बोल दिया। ओके, उसने क्या बोला, टेस्ट इज़ नॉट डिफाइंड एट, मतलब कुछ ना कुछ एरर है। देखते हैं हम क्या एरर है यहाँ पे। ओके, टेस्ट नाम का फंक्शन ही नहीं है मेरे पास। कौन सा फंक्शन है, ऐड नाम का फंक्शन है, तो वो डिफाइंड ही नहीं किया, तो मतलब वो ही ये है ही नहीं, तो कैसे डिफाइन होगा। ओके, तो ऐड नाम का फंक्शन है आपके पास। ओके सॉरी, तो मैं क्या करता हूँ, उसको सेव किया, ब्राउज़र पे आया और फिर मैंने उसको रिफ्रेश कर दिया। चलो आया, एडिशन ऑफ टू नंबर इज़ ES590। ओके, तो ये ES5 में नया फंक्शन आया था। आप फंक्शन का नाम भी मत लिखो, डायरेक्टली उसको वेरिएबल में स्टोर कर दो और उसको कॉल कर सकते हैं। ये वाला हो गया। फिर इसके बीच में मैं पैरामीटर भी पास कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी किए थे 50 कॉमा सपोज 50 मैंने यहाँ पे पास किया और यहाँ पे बोल दिया मैंने फंक्शन में C कॉमा D। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगेन C+D कर दूँगा और मुझे आंसर देखना है क्या आएगा। 50 + 50 क्या आंसर आएगा, 100 आंसर आना चाहिए। ओके, तो देखते हैं हम 100 आंसर आता है कि नहीं। उसको मैंने सेव किया, ब्राउज़र पे आया और मैंने उसको रिफ्रेश कर दिया। चलो आया, एडिशन ऑफ टू नंबर इन ES5 इज़ व्हाट, 100। ओके, तो 100 आपका आउटपुट यहाँ पे आ गया। ओके, मतलब यहाँ से मैंने पैरामीटर पास कर दिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे कॉल कर दिया। तो ये वाला चीज़ इस ES5 में था। तो ES6 में क्या था ऐसा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फिर से कमेंट दे देता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा। ये कमेंट देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे आता हूँ, सॉरी, मैं क्या करता हूँ, जैसे लास्ट टाइम हमने बोला था कि ES5 में क्या करते थे हम, एक फंक्शन लिखते थे। ओके, और उसको वेरिएबल में स्टोर कर देते। अब मैं क्या करूँगा, वेयर डालूंगा यहाँ पे। वेयर डालने के बाद मैं ऐड नाम का वेरिएबल लूँगा और वेरिएबल लेने के बाद मैं फंक्शन यहाँ पे डालता था बराबर ES5 में, और उसको पैरेंथेसिस देता था यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैं इसको पैरेंथेसिस प्रोवाइड करता था। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पैरेंथेसिस नहीं दूंगा। ओके, यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, ये होगा आपका क्या हो गया, ES6। ओके, मैं पैरेंथेसिस खाली रहने दूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक एरो लेता हूँ यहाँ पे, इस तरह का एरो। ओके, और मैं उसके बाद उसको बोल दूंगा फंक्शन को। ओके, क्या बोल दूंगा कि यहाँ पे जो भी कुछ वैल्यूज़ है, जैसे कि कंसोल था आपके पास, कंसोल डॉट लॉग। ओके, मैंने बोल दिया A+B। ओके, और उसके एंड में मैंने सेमीकोलन ले लिया। यहाँ पे A+B कौन सी है, A+B ये वाला ग्लोबली। ओके, तो यहाँ पे कॉल होगा। अभी कितना छोटा हो गया ये। ओके, इतना सारा छोटा प्रोसेस हो गया। तो मैंने बोला था कि अगर आप प्रेजेंटेशन में जाते हैं यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस था कुछ, तो यस, व्हाट इट हैज़ लोअर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू ES6। तो इट हैज़ अ हायर परफॉर्मेंस दैन ES5, मतलब परफॉर्मेंस उसका ज़्यादा है, फटाफट कीवर्ड उसके जो भी कीवर्ड है वो कम है। तो कंपाइलर चेक करता है कि ES6 से अगर आपने डिफाइन किया है तो जितने उसके कम से कम कीवर्ड है, तो मतलब कि एग्जीक्यूशन ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा कीवर्ड है उतना वो देखेगा कि लॉजिक के अकॉर्डिंग आपने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं क्या नहीं किए। ओके, तो वो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ता है उसका यहाँ पे। ओके, तो चलो जाते हम फिर से इस एडिटर में, सबलाइम एडिटर में, और जाने के बाद हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। ओके, तो उसको जानने के लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से यहाँ पे बैकटी का यूज़ कर सकता हूँ ना। तो मैं क्या करता हूँ, एडिशन ऑफ टू नंबर इन ES6 बोल देता हूँ। ओके,
फिर मैं उसको डॉलर मार्क लगाता हूँ और ये वैल्यू मुझे डिस्प्ले करनी है तो मैं उसको कर्ली ब्रेसेस में लिख दूंगा, फिर डॉट एंड देन बैक टी यहाँ पे, सॉरी नॉट बैक टी हियर व्हाट दैट वे बैक टी वी कैन डिक्लेयर। ओके, यहाँ पे मैंने बैक टी डिक्लेयर कर दिया। अभी मैं उसको क्या करता हूँ, ब्राउज़र पे दिखाता हूँ, एक ही लाइन में आ गया। चलो ये कितना लिखना पड़ता था मुझे, ये सब एक लाइन में आ गया। ओके, तो उसको मैं ब्राउज़र पे आता हूँ और उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। ओके, मुझे कुछ आउटपुट ही नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, क्या रह गया मेरे से अभी। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता, हाँ यहाँ पे स्पेस दिया है मैंने, तो स्पेस नहीं देना है सबसे पहली बात। अरे हाँ, नहीं, और सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात कि मैंने ऐड फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। अगर विदाउट कॉलिंग मुझे आउटपुट कैसे दिखेगा, दैट इज़ द मेन थिंग। ओके, मैंने तो ऐड को कॉल कर दिया, उसको सेव किया और फिर ब्राउज़र में आता हूँ और फिर मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके चलो देखें, एडिशन ऑफ टू नंबर इज़ व्हाट, ES690। ओके, तो ये खाली हो गया आपका एज अ नॉर्मल फंक्शन हो गया। अभी मुझे क्या करना है, रिटर्न फंक्शन करना है। तो रिटर्न फंक्शन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, यहाँ पे सिंपल वे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ये सब हटाना पड़ेगा। ओके, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, उसको ES6 को मैं कट करता हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, और फिर उसके बाद मैं डॉलर मार्क लगाता हूँ इसको और फिर ओपन, क्योंकि ऐड फंक्शन मुझे डिस्प्ले करना है, रिटर्न जो भी कुछ आएगा, फिर डॉट और बैक टी और फिर कंप्लीट राउंड। ओके, तो मैंने उसको सेव कर दिया और यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ। पहले क्या क्लियर करना है आपको, ये सब क्लियर करना पड़ेगा और रिटर्न मुझे करना है जैसे मैंने किया था रिटर्न इस नॉर्मल फंक्शन में, फिर ES5 फंक्शन में, एनोनिमस फंक्शन में, अभी एरो फंक्शन में मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ। ओके, ये तीनों डिफरेंसेस है। इस नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ये वाला था, फिर नया वाला ES5 का ये वाला फंक्शन था और ES6 का ये वाला नया फंक्शन है। ओके, तो ये डिफरेंसेस है। तो रिटर्न में जब करता हूँ इसको, चलो देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता है। ओके, आंसर आना चाहिए। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ 60 लिखता हूँ, 110। ओके, तो एडिशन ऑफ टू नंबर इन ES6 इज व्हाट, कितना आना चाहिए, 110। तो मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या आ गया, 110। चलो आ गया आउटपुट। अभी मैं यहाँ पे एक नया फीचर है इस ES6 में, अगर आपके पास एक ही लाइन का स्टेटमेंट है, एक ही लाइन में आप रिटर्न कर रहे हैं, तो आप वो रिटर्न भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलो मैं रिटर्न निकाल देता हूँ। उसके साथ आप जो कर्ली ब्रेसेस है वो भी निकाल सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस निकालना मतलब क्या, कि जो नंबर ऑफ लाइन स्टेटमेंट के लिए आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं वो यहाँ से हटा सकते हैं और रिटर्न भी हटा सकते हैं, अगर एक ही लाइन में आप रिटर्न कर रहे हैं तो। ओके, एक ही लाइन का स्टेटमेंट है तो। ओके, चलो देखते हैं इसका आउटपुट आता है क्या नहीं। जो एक फीचर है यहाँ पे इस ES6 का। ओके, मैंने उसको सेव किया, फिर ब्राउज़र पे आया और उसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद मेरे पास वही आउटपुट आ रहा है। ओके, तो दैट इज़ द वन फीचर। तो ये हो गया। इसमें देखना है मुझे पैरामीटर्स फंक्शन देखने हैं। तो पैरामीटर्स में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आर्गुमेंट पास करूँगा 60,60। ओके, और यहाँ पे मैं भेज दूँगा C,D। ओके, और फिर मैं यहाँ पे बोल दूँगा C,+D। चलो देखते हैं आंसर क्या आना चाहिए, 120। मैं फिर ब्राउज़र पे आता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरा आंसर आ गया 120 ES6। ओके, तो इस तरह से आपके फंक्शन चलेंगे, नॉर्मल फंक्शन, फिर रिटर्न फंक्शन, देन पैरामीटर्स फंक्शन। तो सेम चीज़ नॉर्मल फंक्शन, रिटर्न फंक्शन और पैरामीटर्स फंक्शन ES5 में भी हो सकता है और ES6 में भी हो सकता है। बट डिफरेंस क्या है इसमें, ये थोड़ा सा लेंदी है, ये थोड़ा सा, ये बिल्कुल भी लेंदी नहीं है। ओके, एज कंपेयर टू ES5, इसमें शॉर्टकट कोड हो जाता है आपका सब कुछ। ओके, सो दैट इज़ द थिंग वी हैव राइट नाउ अबाउट द फंक्शंस। सो आई होप you understand what the functions, arrow functions, normal function, anonymous function. Okay, तो ये ES6
ES5 को मैं anonymous function भी बोल सकता हूँ. I think enough for that today lecture, and thank you so much all of you. You do the practice. Okay, if you like my video, so please subscribe and like my video. Okay, thank you so much.